Hello and welcome to today's videos on ability. So in this video we will explore about life skills and how you can improve your life skills. There are so many types of skills like social skills, thinking skills and emotional skills. One by one we will discuss in this video. So let's get started. So before going to start this chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. Abilities or life skills are adapted and positive behavior pattern that enable us to efficiently deal with the demand and challenge of everyday lives. Abilities और skills क्या होते हैं, हम लोग अडेप्ट करते हैं और एक पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न की तरह होते हैं जिसकी वजह से हम लोग चैलेंज को फेस करते हैं डेली लाइफ में. These are acquired through learnings and are used to handle problems and questions commonly encountered in daily human lives. This lead to positives and assist in physical, mental and emotional growth of a person. ये क्या करते हैं, हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ करने में मदद करता है. These are essentials for making the most of life. Owing to the rapid rate of change in our world, the ability to adjust and adapt has become critical to success. If you cultivate the life skills within yourselves, you become equipped not only to thrive in the classroom but also in the world beyond. There is no definitive list of life skills. Moreover, critical skills can prove to be more relevant to you, while some may prove to be less relevant to you. In other words, the applications of life skills is highly depend on life circumstance, culture, behavior, belief, geographical locations, etc., which vary from persons to persons. However, the divisions and subdivisions of life skills are shown as under. लाइफ स्किल्स या फिर एबिलिटी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट है सोशल स्किल, सेकेंड है थिंकिंग स्किल, थर्ड है इमोशनल स्किल. सोशल स्किल्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3: इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एम्पैथी. थिंकिंग स्किल्स इज डिवाइडेड इनटू 5: सेल्फ अवेयरनेस, creative thinking, critical thinking, decisions making, problem solving. Emotional skills is divided into 2: coping and with stress, coping with emotions. So let's discuss one by one. Social skills. This refer to the skills that are useful for living in the society. ये यूज़फुल होता है हमारे सोसाइटी में रहने के लिए. ये सोशल स्किल्स हेल्प करता है. दिस स्किल्स इम्बाइब इन यू a code of conduct that make you probably interact with the member of the society. Basically, this involves verbal and non-verbal communications. Basically, ये क्या involves होता है इसमें? Verbal and non-verbal communications skill involves होता है social skills में. These are further divided into, ये further कितना में divided है? 3 parts में divided है. First, effective communication. You should learn to express or communicate your thought and feelings very clearly. हमें अपना थॉट या फिर फीलिंग्स को बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए. You should display a good body language and choose your words carefully. हमें अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक से डिस्प्ले करना चाहिए. हमें अपना बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखना चाहिए और जो हम बोल रहे हैं वो बहुत केयरफुल तरीके से बोलना चाहिए. बी वेरी पोलाइट, हमें पोलाइट रहना चाहिए. एंड कॉर्टियस इन योर टर्न. वेल कम्युनिकेटिंग, कीप इन माइंड द स्टैंडर्ड और स्टेटस ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन्स. हम जिसके साथ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड और स्टेटस देख के उसके साथ कम्युनिकेशंस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू शुड अवॉइड यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद अ लेबर. जैसे कि हमें इंग्लिश आते हुए भी हम इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं. किसके साथ? लेबर के साथ. अगर उसको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हमें उसके साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए. ये हमें डिसरिस्पेक्ट शो करता है. Interpersonal relationships. You should learn to be respectful toward all your elders. You should always remain friendly with your peers. हमें
हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए एल्डर्स के प्रति और फ्रेंडली रहना चाहिए हमें अपने ग्रुप्स में। मोर ओवर यू शुड बी लविंग, काइंड, केयरिंग, कॉर्टियस एंड हेल्पफुल टुवर्ड एवरीबॉडी। हमें दूसरों के प्रति लविंग, काइंड, केयरिंग, कॉर्टियस रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू डू नॉट लाइक योर फ्रेंड्स बिहेवियर, ट्राई टू मैनेज द थिंग्स इन क्लैम एंड कंट्रोल्ड वे। जैसे कि अगर हमें अपने दोस्त का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हमें उसके साथ शांति व्यवहार से रहना चाहिए। एम्पैथी, it refers to your ability of feeling another person's sorrow as if they are your own। ये क्या एबिलिटी शो करता है कि हमें दूसरे पर्सन्स का शोरो अपने जैसा महसूस होना चाहिए। इट इज़ ए फीलिंग वेयर बाय यू कंसीडर समवन एल्स पेन्स एज योर ओन। ये ऐसा फीलिंग्स है जहाँ पे हम लोग दूसरे का पेन्स को अपना मानते हैं। इट इज़ अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वार इज़ बोथ वन एंड लूस्ट। ये ऐसा कैपेसिटी होता है जहाँ पे हमें ये बिलीव कराता है कि हर एक वार क्या है, आइदर वो वन होगा या फिर लॉस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फील द पेन ऑफ योर फ्रेंड एज योर ऑन एंड देन हेल्प एंड कंसोल हिम्स, यू आर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम्स। जैसे हमें अपने दोस्त का दर्द अपना सा महसूस होने लगेगा तो हम लोग उसका हेल्प करेंगे, कंसोल्स करेंगे। तो ये क्या शो किया, हम उसको एम्पैथी शो किए। सेकेंड है थिंकिंग स्किल्स। दिस आर माइंड ओरिएंटेड स्किल्स विच हेल्प यू इन एनालाइजिंग एवरीथिंग। ये क्या है, एक माइंड ओरिएंटेड स्किल्स है जो कि हमको एनालाइज करते हैं सारा चीज़ जानने में। दिस रिलेट टू योर ब्रेन पावर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये हमारे ब्रेन से रिलेट होता है, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेट होता है। दिस इन्वॉल्व्स विजडम्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, विजडम्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है। ये अगेन डिवाइडेड इंटू 5 थिंकिंग स्किल्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। इट इज़ द एबिलिटी टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड थिंक अराउंड यू। सेल्फ अवेयरनेस ऐसा एबिलिटी होता है जहाँ पे हम लोग खुद को जानते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स आंसरिंग द क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू आई वांट द मोस्ट। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा। सेल्फ अवेयरनेस में ऐसा आप क्वेश्चंस आ सकता है। व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू डू फॉर सक्सेस। हमें क्या ऐसा चीज़ चाहिए जिसकी वजह से हम सक्सेस हो सकते हैं। व्हाट मेक मी हैप्पी और सैड। ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे हैप्पी या फिर सैड करता है। डू आई हैव अ पॉजिटिव आउटलुक और नेगेटिव आउटलुक। क्या हमारे पास पॉजिटिव आउटलुक है या फिर नेगेटिव आउटलुक है। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स यू गेट योर यू शुड चेंज योर सेल्फ। और इसी के बेसिस में जो हमें आंसर मिलेगा उसके वजह से उसके हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी फुल्ली अवेयर दैट इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस इज़ हार्मफुल द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जैसे हम लोग फुल्ली अवेयर होते हैं कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे ऑल लिविंग बींग्स के लिए। सेकेंड है क्रिएटिव थिंकिंग से। इट मीन्स थिंकिंग ऑफ न्यूअर आइडिया विच आर मोर यूजफुल एज वेल एज डिफरेंट फ्रॉम एक्सिस्टिंग वंस। क्रिएटिव थिंकिंग ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग दूसरों से कुछ अलग सोचते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इट मीन्स पोर्ट्रेइंग और ब्रिंगिंग इनटू एक्शंस योर वेरी ओन आइडिया विच आर यूनिक इन नेचर। इसका मतलब होता है कि हम लोग अपना खुद का एक आइडिया पर काम करते हैं और ये बाकी से यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइजिंग से न्यू स्टडी पैटर्न्स विच इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग से। हम लोग एक ऐसा स्टडी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो कि यूनिक है और एक लेस टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, इट मीन्स गिविंग सीरियस थॉट टू एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट। इट मीन्स फाइंडिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। इसका मतलब होता है कि हम वो चीज़ को फाइंड कर रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्ट या फिर कॉज हुआ है वेरियस थिंग्स का। इट इज़ अ प्री रिक्वेस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड डिसीजंस मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट द मिस्टेक दैट रिड्यूस योर मार्क्स। ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मार्क्स रिड्यूस हुआ है। एंड देन रिमूविंग दैम शो एज टू गेट गुड मार्क्स। और फिर उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उस मिस्टेक को हम लोग रिमूव कर रहे हैं ताकि हमें गुड मार्क्स मिले। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग से। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट डू डू।
इट इन्वॉल्व्स क्या, डिसीजंस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, व्हाट टू डू हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू डू हमें कैसे करना चाहिए. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सेलेक्शंस ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आउट ऑफ डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस. It is based on your competitions as to how you analyze a given piece of information. ये हमारे competitions में बहुत काम आता है कि हम लोग कैसे एक छोटे से informations को कैसे analyze कर रहे हैं. For example, taking a decisions of not watching TV during your exams. जैसे कि हम एक decision लेते हैं कि जब एग्ज़ाम है तो उस टाइम हमें TV नहीं देखना चाहिए, ये होता है एक decisions making. Next है problem solving. It means coming out of an unpleasant or difficult situations by way of thinking power and decisions making. प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होता है कि एक अनप्लीजेंट या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर होना अपने थिंकिंग या फिर डिसीजंस मेकिंग पावर के थ्रू हम लोग उस अनप्लीजेंट या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर हो रहे हैं. इट इन्वॉल्व थिंकिंग्स अबाउट द रूट ऑफ ए प्रॉब्लम्स एंड देन टेकिंग नेसेसरी एक्शंस टू इरेक्ट इट. ये क्या इन्वॉल्व करता है कि हम उसके ऊपर सोच रहे हैं जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके और उसके लिए हम लोग एक्शंस लेते हैं ताकि हम उससे जल्दी बाहर आ सके या फिर हम उससे बाहर आ सके उस सिचुएशंस उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अप अर्ली सो एज टू स्टडी मोर सॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स ऑफ लेक ऑफ टाइम. जैसे कि हम लोग जल्दी उठते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके कम टाइम में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके. नेक्स्ट है इमोशनल स्किल्स इज डिवाइडेड इनटू 2. दिस रिफर टू द कंट्रोल दैट यू हैव over your expressions of happiness, fear, anger, hatred, etc. This reflects your ability of not becoming a puppet in the hand of your emotions. ये ऐसा ability होता है जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा emotions नहीं होना है और ना ही हम लोग emotions का कोई भी puppet बन के रहना है. This include coping with stress. Everybody face problems which cause worry or tensions. हर कोई problem face करता है जिसकी वजह से उसको worry या फिर tensions होता है. However, only that persons become successful in surmounting the problems who realize his tensions or copes with it effectively. लेकिन जितना भी इंसान को प्रॉब्लम या फिर वरीज होता है उसको वो क्या करता है सॉल्व करता है और जो इंसान इसको सक्सेसफुली सॉल्व करके उस इमोशनल से बाहर आ जाता है वही सक्सेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, सो एज टू बीट द एग्ज़ाम स्ट्रेस. हमें अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करके स्टडी करना पड़ेगा. यू कैन रिलैक्स योर माइंड. हमें अपना माइंड को रिलैक्स करना चाहिए बाय वे ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक या म्यूज़िक सुन के या फिर स्टडी करके. कॉपिंग विथ इमोशंस. एवरीबडी हैज़ फीलिंग एंड इमोशंस विथ डिफर फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स. हर किसी का फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है और ये अलग अलग होता है, पर्सन्स टू पर्सन्स अलग होता है. वन शुड लर्न टू डेवलप फुल कंट्रोल ओवर द वे इन विच ही और शी एक्सप्रेस हीज और हर इमोशंस. हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नॉट स्पीकिंग हार्श वर्ड इन ए स्टेट ऑफ एंगर. जैसे कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो हमें हार्श वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए. Third, ability are like equipped that protect you in different aspect of life. So ability क्या है, ऐसा equipped है जो हमें protect करता है अलग अलग situations life का situation से. Try to cultivate all the abilities in yourselves. हमें अपने अंदर सारा एबिलिटीज़ को कल्टिवेट करना चाहिए. इफ़ यू डू सो देन ओनली यू विल बिकम कैपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग इन लाइफ. अगर हम लोग अपना एबिलिटी को कल्टिवेट कर लेते हैं तो हम लोग लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू शुड डेवलप योर लाइफ स्किल्स एंड एबिलिटी. सो थैंक यू फॉर टुडे. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.